Good morning, children. Today, let us start with the first lesson of science of class 7th, that is the nutrition in plants. Children, what do you mean by nutrition? Nutrients, the food components which are necessary for the plants, that is called as a nutrients. We know that the human, the animals, they also need nutrients. We get it from the food we eat. That is carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals. These are the major nutrients of our food. Now the question arises, we get the food from the animals and plants. So from where do these animals and plants get the food? The first question is this. So now let us study from where do these animals and plants get the food. Now first we will study about the nutrition in animals. एनिमल्स का न्यूट्रिशन, एनिमल्स को न्यूट्रिशन कहाँ और कैसे मिलता है, दैट वी विल सी. नाउ वी विल सी हाउ दिस एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स. नाउ यू नो दैट सिंस द चाइल्डहुड, मीन्स जनरली फ्रॉम 3rd class 4th class you are studying that plants are able to make their own food. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. बट हाउ डू दे मेक, हाउ डू दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, आज हम वो यहाँ पर इस लेसन में पढ़ेंगे. दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स का न्यूट्रिशन मतलब उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. नाउ द फॉलोइंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी. द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स. नाउ what do you mean by autotrophs? The plants which are capable, plants which are capable to make their own food, they are called as the autotrophs. ऐसे plants जो खुद अपना खाना बना सकते हैं, they are called as a autotrophs. Auto means self, trophs means preparation, means they are preparing their own food. They are able, they are capable of making their own food. वो अपना खुद का खाना बनाने के लायक होते हैं, उनको कहते हैं autotrophs. Are we human the autotrophs? No, not at all. Human is not able to make their own food. हम अपना खुद का खाना नहीं बना सकते. आप बोलेंगे हमारे मम्मी खाना बनाते हैं, but मम्मी is making the food, is the raw material, ingredients are available. She is bringing it from the market, from the farmers, from the garden. But वहाँ पर वो कहाँ और कैसे आते हैं? We are, the another is heterotrophs. The organisms which are not able to make their own food. ऐसे organisms जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, उनको कहते हैं heterotrophs. Those who cannot make and depend on others, that are called as a heterotrophs. Now what is autotrophic mode of nutrition? In this lesson we are going to study some types of nutrition, that is autotrophic, heterotrophic, saprotrophic, as well as insectivorous also. So first of all we will see what is autotrophic mode of nutrition. मतलब जो व्यक्ति, means the person, not here we can say that in this method the plants are capable of making their own food, and this process of preparing their own food is called as the autotrophic nutrition. The plants are called as autotrophs. प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और वो इस मेथड को अपनाते हैं, इस मेथड से वो अपना न्यूट्रिशन पाते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हियर इन ऑटोट्रॉपिक ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं. द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. The nutrition in which the other animals depend on it. For example, human being and all the animals. We are depending on the plants for food. That is the heterotrophic mode of nutrition. The another mode of nutrition is saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophs. Saprotrophs means what? Saprotrophs means
which depends on dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter means what? You might have seen there are many dead and dead bodies are left over on the road sides. रोड साइड्स पर आपने देखे होंगे, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, पैदल सैर के लिए जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, और अगर कोई ऐसे सुनसान जगह है वहाँ पर आपको थोड़ी सी बदबू आने लगती है, यू कवर योर नोज विथ योर हैंडकरचिफ. आप अपने हैंडकरचिफ से तुरंत आपका नाक कवर करते हो. वाई? बिकॉज यू गेट सम स्मेल. वहाँ पर आपको थोड़ी सी बदबू आ रही होती, तो वो आपको ना आए इसलिए आप अपनी नाक को ढकते हो. सो व्हाट इज़ दिस? वहाँ पर जो होते हैं वो सम ऑफ द डेड एनिमल और द एनिमल्स डेड बॉडी इज लाइंग देयर ऑन द रोड साइड. आइदर झाड़ियों के अंदर रहता है और कहीं जहाँ कोई किसे नहीं दिखे ऐसे जगह वो डेड बॉडी पड़ी रहती है. तो डेड बॉडी में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज करते हैं मतलब वो उसे उसकी बॉडी को खाने के लिए, खाने का जो उनका प्रोसेस होता है वो चलता है, और उसकी वजह से वहाँ पर बदबू आती है. 1-2 दिन तक लगातार अगर आप जाओगे तो 2-3 दिन तक आपको बदबू आएगी. उसके बाद वो बदबू आना बंद हो जाएगी. इट विल स्टॉप आफ्टर फ्यू डेज. 2-3 days, that smell, that odor will not come. This is because the full body of that organism is eaten up by the microorganisms. जो microorganisms होते हैं वो उसकी पूरी बॉडी को, फ्लैश को पूरा खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज कर देते हैं मीन्स इट कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म, और फिर वो स्मेल जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है. वहाँ पर वो जो स्मेल आ रही होती है वो स्मेल भी डिसअपियर हो जाती है, एंड देन इट इज़ एवरीथिंग एज नॉर्मल. वहाँ की डेड बॉडी कोई उठाकर नहीं लेकर के गया है, ना ही कोई म्यूनसिपैलिटी वाला आकर उठाकर उसे लेकर गया है, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा जाते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर्स. दैट इज़ the microorganisms are the decomposers which eat the dead and decaying organic matter. So saprotrophic mode of nutrition ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें dead animals, dead and decaying organic matters के ऊपर तैयार होने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसको saprotrophic mode of nutrition कहा जाता है. So इसका एक एग्जाम्पल है मशरूम. आपने देखा होगा मशरूम पैकेट्स में बिकते हैं. In the small packets in the market, in the malls, you might have seen the mushroom. पैकेट्स मशरूम जो होता है ऐसे खुले में नहीं मिलते हैं, वो पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं. तो वो मशरूम जो होते हैं वो जनरली लकड़ी पर पाए जाते हैं, on the logs of the wood. This mushroom is developed because it absorbs, it takes the cellulose which is present in the wood. वुड में जो सेलुलोज होता है उसके ऊपर वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को एब्सॉर्ब करके उससे वो तैयार होता है. सम ऑफ द मशरूम्स नाउ डेज द फार्मर्स आर डूइंग द, जैसे फार्मर्स कपास, चना, मूंग की खेती करते हैं, वैसे ही गेहूं की खेती करते हैं, वैसे आजकल वो मशरूम की खेती करने लग गए. मीन्स वो अपने खेत में मशरूम उगाने लगे हैं. सो दिस इज, इट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. Now the another example, one simple example I will give you of a bread. आप एक ब्रेड का पीस लीजिए, एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी छीट कर, वो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके आप उसको एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर आप उसे कोई टच ना करे. राइट? देन आफ्टर दैट 1-2 दिन के बाद जब आप उसे निकालोगे, आप उससे देखोगे, देयर विल बी द मोल्ड्स विल बी देयर, दैट इज़ द फंगाई. उस पर फफूंद आ जाती है, ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाती है, दैट इज़ द फंगाई. मीन्स इट डेवलप्स, इट ग्रोज. वो कहाँ पर ग्रो हो रहा है? जो डेड एंड डिकेइंग. अब वो जो ब्रेड था उस पर पानी छीट दिया, 1-2 दिन में वो कैसा हो जाता है? ब्रेड खराब हो जाता है. खराब हो गया मतलब वो सड़ गया. सड़ने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सड़ तो गया है, अब वो हमारे खाने लायक तो है नहीं, तो वो सड़े हुई चीज़ों में से जो न्यूट्रिएंट्स निकाल करके जो उसमें तैयार हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ इन दिस
अनदर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टडी इज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कसकुटा। कसकुटा दैट इज द अमर बेल। अमर बेल आपने देखा होगा कि उसके नाम से आपको समझ में आ रहा, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं, ऐसा बेल जो कभी मरता नहीं है। बट ये अमर बेल क्या होता है, एक वायरी स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब उसमें पत्ते नहीं होते हैं, केवल वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो किसी पेड़ पर रहता है, मतलब वो किसी पेड़ पर रहता है, वो अपने आप अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि इट डजंट हैव एनी रूट नॉर स्टेम नॉर लीव्स टू प्रिपेयर द इट्स ओन फूड। तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे पर, मतलब किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ता है, दूसरे प्लांट पर वो रहता है, और वो उससे न्यूट्रिएंट्स और पानी और मिनरल्स उससे लेता है, और उससे पानी और मिनरल्स लेकर वो अपना खुद का, मीन्स द प्लांट्स आर टेकिंग, plants is making the food for it because it does not have leaves, and it gives only support to the plants. In this way, this kaskuta is the heterotrophic mode of nutrition. It cannot make its own food, but it gives only support to the plant. Then the another mode of nutrition is insectivorous plants. Insectivorous plants में क्या होता है, एक plant, it is an plant which has a pitcher like structure, मतलब एक घड़े के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, और उस पिचर जैसे स्ट्रक्चर में it is attracted by the insect. वो जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने से क्या होता है, इट सिट्स ऑन इट्स फ्लिप, वो उसके फ्लिप के ऊपर बैठता है। जैसे ही उस पर इंसेक्ट बैठेगा, वो जो होता है वो अपने आप, उसका ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन दैट पिचर। वो जो पिचर होता है, उस पिचर में वो इंसेक्ट जो होता है वो अटक जाता है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ इंसेक्टिवरस प्लांट्स। प्लांट्स आर नॉट ईटिंग द इंसेक्ट। आपने सुना नहीं होगा कि कोई प्लांट इंसेक्ट खा रहा है, पर ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, तो उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए, उस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट के द्वारा वो अपना जो कमी है वो उसे पूरा करते हैं। सो दिस इज द अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। नाउ let us study the most important topic of this lesson, that is photosynthesis. Now what is photosynthesis? Now before photosynthesis starts, we have to see what is the process or through which this takes place. Now we all of you know that plants are green in color. Plants have roots, leaves, stems, fruits, flowers. Now the important function, the function of the roots is to absorb the water and nutrients from the soil, whereas the leaves, from the childhood, from the second, third class onwards, you are knowing the leaves are preparing food by the process of photosynthesis. But how it takes place? If you see, the leaves have the small minute openings on their layer. leaves के ऊपर छोटे छोटे openings होते हैं, and that openings are called as a stomata. That are called as a stomata. ये जो छोटे छोटे pores होते हैं वो they are performing two functions. That is, it helps in exchange of gases. वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फूड इट गिव्स आउट ऑक्सीजन। वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और फूड प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद उसमें जो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होता है, वो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन के बाद उसको बाहर निकालने के लिए भी ये स्टोमेटा का यूज़ होता है। If you see in this small picture, I have drawn here the leaf. On the near the edges there are the small pores which
आर नॉट सीन बाय आवर आइज, जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। आप पत्ते देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें स्टोमेटा कहाँ है, बिकॉज इट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटल स्पोर. दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग and these are the guard cell. These two are the guard cell which are guarding the stomatal opening. जब ये stomatal opening ऑक्सीजन लेना है तब ये spread हो जाता है and oxygen gives out, is able to from the opening it comes out. When it has to take the carbon dioxide, it is taken inside. So this allows only oxygen and carbon dioxide to come inside. So this is the stomatal opening. Now with the help of these stomatal openings are there on each and every part of the leaf. हर एक पत्ते के ऊपर ये stomatal openings होते हैं. तो क्या होता है, ये जो stomatal openings होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, you know the composition of air is having 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 0.03% of carbon dioxide. Now this carbon dioxide is taken away with the help of green leaves through the stomatal opening. This carbon dioxide is taken carbon dioxide is taken from the air. Carbon dioxide is taken from the air. Water is taken from the roots. Water is taken from the roots of the plant with the help of sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, अब सनलाइट कहाँ होता है, सनलाइट इज अवेलेबल एवरीवेयर. विदाउट सनलाइट एवरी डे sun rises and everywhere the light of the sunlight is spread all over. So with the help of that sunlight and chlorophyll is present in the leaves में वो chlorophyll होता है. With the help of these sunlight and chlorophyll, carbon dioxide is taken from the air. Water is obtained from with the help of roots. With the help of roots take the water from the soil. With the help of sunlight and chlorophyll, it prepare its food and oxygen. Food is prepared in the form of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ये खाना तैयार करता है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर और स्टार्च के फॉर्म में दिस इज प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इट प्रिपेयर्स द फूड दैट इज द carbohydrates and oxygen is given out. That is, we get oxygen. So by this process, using carbon dioxide from the air, water with the help of roots from the soil, with the help of chlorophyll pigment which is present in the leaves, in the presence of sunlight. sunlight के presence में ही ये reaction होगी. In absence of sunlight, this reaction will not take place. Then only it will be able to produce food. और इसके बाद ही इन चारों के प्रेजेंस में ही ये फूड तैयार होगा और ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड दिस प्रोसेस ऑफ synthesis of food by the process of photosynthesis you will be studying it till class 10th. आपको क्लास 10 तक इसकी डिटेल स्टडी आपको हर क्लास में करनी होगी. So in this we have to see that in photosynthesis carbohydrates are there. Carbohydrates are having sugars. It is having sugar and proteins, but proteins are not available here in this reaction. So from where do we get the proteins? The question arises that
what is this? From where do the plants get proteins? Now, the another example, or in this we will see that this protein is obtained by the nature, by the process of, 78% of nitrogen is present in the air. With this 78%, some of the bacteria, the rhizobium bacteria which are present in the leguminous plants. What are these leguminous plants? Leguminous plants means जो ऐसे plants होते हैं जिसमें जो सारे दाल होते हैं, दालों के जो पौधे होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, उनके रूट्स में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे गठाने होते हैं, छोटी छोटी गठाने होती है, एंड दे आर कॉल्ड एज अ रूट नोड्यूल्स, एंड दिस स्मॉल नोड्यूल्स आर कॉल्ड एज अ, these are the root nodules, and these root nodules consist of rhizobium bacteria. इस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं. दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इज गेटिंग द शेल्टर इन द रूट्स. राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट्स में शेल्टर मिलता है. इन एक्सचेंज वो उसे क्या दे रहा है? इन एक्सचेंज व्हाट इज दिस राइजोबियम बैक्टीरिया गिव्स? राइजोबियम बैक्टीरिया उसके एवज में प्लांट्स को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स देता है. इट एब्सॉर्ब्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर रहा है और उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट में करता है, और ये नाइट्रेट जो होता है वो सॉइल में घुल जाता है. इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल एंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट तैयार करता है और ये जो है वो सॉइल में घुल जाता है और वो सॉइल उसे एब्सॉर्ब कर पाता है. सॉइल नाइट्रोजन सीधे एटमॉस्फेयर में से नहीं ले सकता. ये नाइट्रेट कहाँ से लेगा? वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट में करेंगे और फिर वही नाइट्रेट सॉइल एब्सॉर्ब कर पाता है, और इसी वजह से सॉइल में क्या मिल जाता है? द सॉइल गेट्स न्यूट्रिएंट वेयर एज द बैक्टीरिया गेट द शेल्टर. बैक्टीरिया का भी काम हो जाता है, सॉइल का भी काम हो जाता है. दे हेल्प ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मतलब एक दूसरे की मदद करना. वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. अ मेड विच इज कमिंग इन आवर हाउस. हमारे घर जो बाई आती है काम के लिए, वॉट शी इज डूइंग? शी इज हेल्पिंग अ मदर. वो हमारे मम्मी को हमारे घर काम के लिए मदद करती है. इन रिटर्न वॉट वी आर डूइंग? हम उसके एवज में उन्हें क्या करते हैं? वी आर गिविंग मनी टू हर. मीन्स बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर. She is helping to our mother to do the work, and in return उसके एवज में हम क्या कर रहे हैं? मम्मी मदर इज गिविंग मनी टू द मेड. दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मतलब आप मुझे कुछ हेल्प करो और मैं आपकी दूसरे तरीके से हेल्प करूँगी. दैट इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. द अनदर एग्जाम्पल इज अ लाइकेन. Lichen is an algae which is generally seen on the river sides, on the bigger stones. तो वहाँ पर वो algae जो होती है, it is not able, algae is only able to make synthesize the food by the process of photosynthesis, and it get the nutrients by the lichen. So in this way both are getting सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. वो एक दूसरे की मदद करके दोनों का काम वो कर लेते हैं. सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, symbiotic relationship, what is insectivorous plants, what is heterotrophic mode of nutrition in case of plants, that is amarbel or kaskuta, how they are helping each other. We also studied about the process of photosynthesis. We have studied about the process of photosynthesis, how the
food is prepared by the process of photosynthesis. With the help of carbon dioxide, water, in presence of sunlight and chlorophyll, how the plants are making their own food, that is synthesis of carbohydrates, that is in the form of sugar and starch, as well as oxygen is released. So, this is what we have studied in this lesson. In the next lesson, we will study about nutrition in animals.